Hello everyone, welcome to the first class of 500 most expected MCQs session on general awareness. So in this session मैं कवर करने वाली हूँ IBPS अपकमिंग जो कि आपके एग्जाम्स हैं IBPS और RBPO क्लर्क के जो अपकमिंग मेंस के एग्जाम होने वाले हैं विच इज़ इन योर September month and one is in your October month. So उनमें जो भी expected questions पूछे जा सकते हैं उसके 500 MCQs मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ एंड आज का पहला क्लास है. लेट मी टेल यू कि हर एक क्लास में हम 25 MCQs सॉल्व करेंगे. ऑल राइट, आई वोंट बी मैं इसे बहुत लंबा नहीं बनाऊंगी. मैं एक ही सेशन में 500 MCQs नहीं करवा रही हूँ क्योंकि वो बहुत मोनोटोनस हो जाता है. बहुत से बच्चे उसे देखते भी नहीं है फुल वीडियो, विच आई डोंट वांट. मैं वो नहीं चाहती हूँ. आई वांट कि आप कुछ ही देखो बट आप अच्छे से देखो. ऑलराइट, सो इन सेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे? हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे, हम बैंकिंग अवेयरनेस की क्वेश्चंस कवर करेंगे, एज वेल एज हम स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे. सो जो भी जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है हम सारी चीज़ें इन 500 MCQs में कवर करने वाले हैं. Okay, so now without further ado, let's get started. All right, so starting with the first question, which reads, which country holds the presidency of the Shanghai Cooperation Organization, that is SCO, in 2022? Your answer is Uzbekistan. So, where was this meeting held? It was held in the city in Tashkent. कहाँ पे हुआ था? Tashkent में हुआ था under the presidency of Uzbekistan. All right. Next question is Rakhigiri. Rakhigiri or Rakhigiri, which was seen in the news recently, it is an ancient site located in which state? किस state में Rakhigiri site located है? It is located in Haryana. Alright, so Rakhigiri is an archaeological site, ancient site, which is located in Haryana, dates back to the Indus Valley civilization. Alright, next is your question number 3. So, which ministry is associated with the Weapons of Mass Destruction and Their Delivery Systems Amendment Bill 2022? आपका आंसर क्या होगा? Ministry of External Affairs. All right, Ministry of External Affairs. 4. What is the official slogan of the 2024 Paris Olympic? So Paris Olympic का official slogan क्या है? Games wide open. So these questions are very important, as I said. ये सब questions आपके exams में पूछे जा सकते हैं. Next is Kaziranga National Park is located along which Indian river? क्या पूछ रहा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये किस रिवर के along में, किस रिवर के पास situated है? So it is situated along the river Brahmaputra. And where is this Kaziranga National Park located? It is in Assam. ये कहाँ पे है काजीरंगा नेशनल पार्क? असम में. And located along which river? Along the river Brahmaputra. Question number 6 is which state passed a bill seeking to regulate stray cattle in urban areas of the state? All right, किस state ने ये pass किया हुआ है इस bill को? Your answer is Gujarat. Okay, so the Gujarat Cattle Control in Urban Areas Bill 2022 mentions, क्या mention करती है? The threat the stray cattle pose to those riding टू व्हीलर्स. राइट, हम ऑफन देखते हैं कि जो स्ट्रे कैटल्स होते हैं वो रास्ते में चलते हैं, जो टू व्हीलर्स उन्हें हिट करके चले जाते हैं. राइट, सो उसी के रिगार्ड्स में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है. ओके, एंड व्हेन दिस बिल, जब ये लॉ बन जाएगी, व्हेन दिस बिल बिकम्स अ लॉ, इट विल बी एप्लीकेबल इन गुजरात 8 स्टेट. ओके, इन 8 मेजर सिटी, सॉरी, सो गुजरात के 8 मेजर सिटी में ये क्या होगा? ये एप्लीकेबल होगा. एंड व्हाट आर दोज 8 मेजर सिटीज? कौन कौन सी सिटीज हैं गुजरात की? नंबर 1, अहमदाबाद इज देयर. ओके, देन वी हैव वडोदरा, देन यू हैव सूरत इज ऑल्सो देयर, राजकोट इज देयर, गांधीनगर is there. Just a minute.
So Gandhinagar is there, Jamnagar, okay, फिर आपका भावनगर भी है एंड जूनागढ़, ठीक है। सो अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, गांधीनगर, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, ऑलराइट, इन सभी सिटीज में एप्लीकेबल होंगी। नेक्स्ट इज सजीबू नोंगमा पनबा इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये किस इंडियन स्टेट का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है? ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, ऑलराइट। ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल है किन फॉलोअर्स का? इट इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल for the followers of the Sanamahism religion. For the followers of the Sanamahism religion. Okay, in Manipur. ठीक है, नेक्स्ट question number 8. Which is the largest private sector bank of India by assets as of 2022? So कौन है largest private sector bank? That is your HDFC bank, okay, and it has a market cap of rupees 8.35 trillion, ठीक है। market cap कितना है? 8.35 trillion, okay. Next, number 9. Which city or union territory has topped the India Innovation Index 2022 among union territories and city states? All right, your answer is Chandigarh. So Chandigarh was ranked first. Chandigarh city ने top किया है. Delhi was ranked second. All right, Delhi second position में है. Chandigarh first position में है. All right, Andaman Nicobar. ओके, अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आपकी थर्ड पोजीशन में है, ओके। सो फर्स्ट इज योर चंडीगढ़, सेकंड इज योर दिल्ली एंड थर्ड इज योर अंडमान निकोबार, whereas Maharashtra was ranked fourth and Tamil Nadu is in holds the fifth position. So Maharashtra holds the fourth position and Tamil Nadu holds the fifth position. All right, hope this is clear to you all. Next, number 10. Which state has topped Niti Aayog's India Innovation Index 2022 among the major states? Now don't get confused. इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था? ये क्या था? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022, और ये क्या है? नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022. सो वो था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 और ये है नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022. इसमें क्या पूछा गया कि किस स्टेट ने इसमें टॉप किया है? सो आपका आंसर है डी, विच इज कर्नाटका. सो कर्नाटका ने नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में टॉप किया है, whereas सिर्फ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में टॉप किया था चंडीगढ़ ने, जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में देखा. राइट, सो इसमें देखा गया कि कर्नाटका जो है वो फर्स्ट पोजीशन में है, टॉप किया है. सेकंड कौन आई है इसमें? सेकंड इज योर तेलंगाना. महाराष्ट्र है आपकी फोर्थ, इसमें भी महाराष्ट्र फोर्थ आई हुई है. ऑल राइट, एंड फिफ्थ इज योर तमिलनाडु. फिफ्थ इज योर तमिलनाडु एंड हरियाणा जो है वो थर्ड पोजीशन में. सो फर्स्ट इज योर कर्नाटका, सेकंड इज योर तेलंगाना, थर्ड इज योर हरियाणा, महाराष्ट्र होल्ड्स द फोर्थ पोजीशन एंड तमिलनाडु रैंक्स फिफ्थ in the Niti Aayog's India Innovation Index 2022. Moving on to question number 11, it reads the following is a World Ozone Day. यानी कि पूछ रहा है कि किस दिन World Ozone Day celebrate किया जाता है. Your answer is September 16th. So I have given बहुत सारे मिक्स करके मैंने क्वेश्चंस दिए. जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रैंक्स एंड इंडाइसेस में से, फिर थीम्स में से पूछे जाते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, फिर ये डेज एंड थीम्स, राइट.
तो सभी चीज़ों को मैंने मिला के ये सेशन रखा है, एंड हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी, जितनी भी सेशंस होंगी, वो सभी इन सभी टॉपिक्स को फोकस करके होंगी। और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो टॉपिक्स होते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, सभी को फोकस करके मैंने ये क्विज आप लोगों के लिए बनाया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मेरी सारी सेशंस को देखेंगे, सो आप, आई कैन अश्योर यू, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। नेक्स्ट इज योर 12. Which Indian private sector bank launched its new enterprise portal FIN? किसने लॉन्च किया हुआ है? कोटक महिंद्रा बैंक ने। ऑलराइट, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। बैंकिंग अवेयरनेस की पोर्शन से ये आपको पूछ सकते हैं। ऑलराइट, और स्टैटिक जी के अगर देखा जाए तो क्या पूछ सकते हैं, एक कोटक महिंद्रा से ये भी क्वेश्चन आता है कि इसके हेडक्वार्टर्स बताइए कहाँ पे हैं, इसके करंट एमडी और सीईओ कौन है, चेयरमैन कौन है, राइट। सो ये सब हम दूसरी क्लास में करेंगे, बट लेट मी टेल यू, जैसे एक चीज बता देती हूँ, हेडक्वार्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक इज इन मुंबई। ओके, सो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट इज, which country has supplied nuclear fuel to the Kundankulam nuclear power plant KNPP? कौन सी कंट्री ने न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई किया है? ठीक है, कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को। सो कौन सी कंट्री ने किया हुआ है? योर आंसर इज रशिया। नेक्स्ट, नंबर 14, that is Matt Fitzpatrick, who was seen in the news recently associated with which sports? So ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, आपको नाम दे दिया जाएगा किसी भी प्लेयर का और पूछा जाएगा कि अभी जो करंटली रिसेंटली न्यूज़ में इसे दिखाया गया था, आप बताइए कि ये किस स्पोर्ट्स के साथ इन्हें एसोसिएट किया जा सकता है। ऑलराइट, सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो योर आंसर इज गोल्फ। सो ही इज़ अ गोल्फ प्लेयर ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, ये इंग्लैंड के हैं, ही इज़ अ गोल्फ प्लेयर। Next is your 15. Which neighboring country of India has passed a constitutional amendment to empower parliament over the president? Your answer is Sri Lanka. Okay. 16 is, the levy of GST compensation cess has been extended till which year? कितने साल तक के लिए इसको extend कर दिया गया है? Your answer is 2026. Okay. Next. Number 17. Which is the venue of 2022 UN Ocean Conference? Venue कौन सा है? कौन सा था? Your answer is Portugal. All right. Just a moment. Next is question number 18. In which year goods and services tax was introduced in India? कौन से साल में GST को इंडिया में लाया गया था? I think you should all know this. Okay. Your answer is 2017. D. ठीक है, so goods and services tax was launched in India with effect from 1st July 2017. All right. फर्स्ट जुलाई 2017 से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंडिया में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। रैम्प स्कीम विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है? किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। नोट दिस क्वेश्चन गाइज, जब भी स्कीम से आपको पूछेंगे, या तो आपको स्कीम का नाम दे देंगे, पूछेंगे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस किया है, राइट, या फिर आपको स्कीम से कुछ आपको क्वेश्चंस दे देंगे कि स्कीम्स के अंडर क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या रिफॉर्म्स है, जो अगर नई स्कीम है तो क्या क्या स्कीम्स की प्रोविजंस है, अगर पुरानी स्कीम है तो क्या अभी इसमें रिसेंट चेंजेस हुए हैं, रिफॉर्म्स हुए हैं। सो स्कीम्स से रिलेटेड आपको ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। आई शुड टेल यू दिस कि आप अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हो, सो आप, एक मैंने वीडियो बनाई हुई है हाउ टू प्रिपेयर जनरल अवेयरनेस सेक्शन, ठीक है, आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा। उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे क्वेश्चंस वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से फ्रेम करके आते हैं। आप ज़रूर उन वीडियो को देखिए, दैट वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। Question number 20. It says, which movie was adjudged Film of the Year in the Dada Saheb Phalke International Film Festival Awards 2022?
सो किस मूवी को फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था इन द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में? योर आंसर इज पुष्पा द राइज. Number 21. लोकतंत्र के स्वर and the Republican Ethic Book is written by. लोकतंत्र के स्वर and the Republican Ethic Book is written by धर्मेंद्र प्रधान. धर्मेंद्र प्रधान ने इसे लिखा है. Next is number 22. Which country topped the medal tally in 2022 Beijing Winter Olympics? किस कंट्री ने मेडल टैली को टॉप किया है? दैट इज योर नॉर्वे. ऑलराइट, नॉर्वे ने टॉप किया है विथ 16 गोल्ड मेडल्स. कितने गोल्ड मेडल्स मिले हैं इसको? 16 गोल्ड मेडल्स मिले हैं नॉर्वे को. ऑलराइट, नेक्स्ट number 23. Loan and advances of a bank come under the category of assets. Loan and advances of a bank come under the category of assets. Loans हमेशा बैंक के assets होते हैं. Alright, क्योंकि उनके अगेंस्ट में उन्हें इंटरेस्ट मिलता है बैंक्स को. Alright, next is your number 24. Which Indian bank has been awarded IFR Asia's Asian Bank of the Year? Very important question. Very important question. Okay, so your answer is Axis Bank. And again, the headquarter of Axis Bank is in Mumbai. Okay, ये भी questions पूछे जाते हैं. Headquarter of Axis Bank, who is the current CEO, MD, chairman of Axis Bank. ये बहुत questions आते हैं static portion में. Next, the last question is, which state recently launched its startup policy and implementation plan 2022? Your answer is Madhya Pradesh. Madhya Pradesh ने recently startup policy and implementation plan 2022 launch किया है. So this is all for today. I hope you like this session. Please आप लोग अगर नए हो, do subscribe to our channel. Alright, आप वीडियोस को एंड तक देखिए, अच्छे से देखिए सारी क्लासेस को. 500 की MCQs की जो सीरीज़ में लेके आई हूँ, सारे क्लासेस को देखिए. आई अश्योर यू कि इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं. अपकमिंग IBPS RRB PO क्लर्क के एग्जाम में आई अश्योर यू ये क्वेश्चंस आएंगे. ऑल द बेस्ट. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.